Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Muhammad Junaid Iqbal, subject specialist mathematics, and I'm here to teach you mathematics of class 8. For today's topic is De Morgan's laws, in which we will discuss and study that what is the De Morgan law, and then we will move on to the exercise and we will solve the question number 5 from this exercise, and also we will solve an example from the page number 7. Before going to today's topic, let's revise our previous knowledge. You have studied about the commutative laws. What is the commutative law? If A and B are two sets, then A union B is equal to B union A is the commutative law over union, and A intersection B is equal to B intersection A is the commutative law over intersection. After commutative law, you also have studied associative laws. What is the associative law? If A, B and C are three sets, then A union B union C is equal to A union B union C is called the associative law of union. And A intersection B intersection C is equals to A intersection B intersection C is called the associative law over intersection. What is the distributive law? If A, B and C are three sets, then A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C is called the distributive law of union over intersection. Similarly, we also have the distributive law of intersection over union, in which we have A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C. These are the distributive laws. Now we will move on to our today's topic, which is the De Morgan's laws. These are the most important laws, and you have to remember these laws and must clear your concepts about this. What are the De Morgan laws? If A and B are the subsets of a universal set U, then the first De Morgan's law is A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement, and the second De Morgan law is A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement. These are the two De Morgan laws, the most important laws in set theory. एक्चुअली अगर आप देखें तो ये दोनों लॉज आपको सेम नज़र आएंगे, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है. अगर आप फर्स्ट लॉ के राइट हैंड साइड पे देखें तो इसमें A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट है, जबकि दूसरी साइड पे A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट है. इन सिंपल वर्ड्स आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि अगर लेफ़्ट हैंड साइड पे यूनियन का साइन आ रहा है तो फिर राइट हैंड साइड पे इंटरसेक्शन का साइन आएगा. इसी तरह सेकंड लॉ में लेफ़्ट हैंड साइड पे आपके पास इंटरसेक्शन का साइन है और राइट हैंड साइड पे आपके पास यूनियन का साइन है. और कॉम्प्लीमेंट का भी डिफरेंस है. यहाँ पे A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट है, तो दूसरी साइड पे सेपरेट कॉम्प्लीमेंट्स आएंगे, जैसे A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. दीज आर द टू बेसिक डिफरेंस इन दीज टू De Morgan laws. Let's solve an example related to these De Morgan's laws. आपके बुक के पेज नंबर 7 के ऊपर एग्जाम्पल गिवन है, जिसमें वो कहता है वेरीफाई De Morgan's laws इफ़. हमारे पास यहाँ पे तीन सेट्स गिवन है. फर्स्ट सेट इज़ U विच इज़ द यूनिवर्सल सेट, और उसमें आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 अप टू द 10. तो ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, और इस यूनिवर्सल सेट के दो सबसेट्स हमारे पास मौजूद हैं A एंड B. सेट A के एलिमेंट्स हैं 2 4 एंड 6, and the elements of set B are 1 2 3 4 5 6 and 7. These are the elements of set B. इन शॉर्ट हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और दो सेट A एंड B की फॉर्म में है, जो कि यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं. हम इनके ऊपर De Morgan's laws को वेरीफाई करेंगे. जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, हमारे पास दो De Morgan's laws हैं, तो उनमें से फर्स्ट जो De Morgan लॉ है उसको हम पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं. फर्स्ट De Morgan लॉ इज़ A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. इस एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर होगा
कि जब हमारे पास सेट्स गिवन हो तो उनके ऊपर डी मॉर्गन लॉ को किस तरह से सॉल्व करते हैं या डी मॉर्गन लॉज को किस तरह से वेरीफाई करते हैं। ये हमारे पास डी मॉर्गन लॉ है, दरमियान में इक्वालिटी का साइन है, हमारे पास दो साइड्स हैं इसकी, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अगर दोनों के आंसर इक्वल आते हैं तो फिर हम कहेंगे कि हमने डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ वेरीफाई कर लिया है। इसमें हमारे पास अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड पिक करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, हमने उसको लिखा, दिस इज़ द लेफ़्ट हैंड साइड। इसमें लेफ़्ट हैंड साइड में हम पहले ए यूनियन बी को सॉल्व करते हैं और ए यूनियन बी सेट फाइंड करते हैं। अगर हम पहले ए यूनियन बी को सॉल्व करें तो सेट ए हमारे पास क्या है, 2, 4 and 6, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड देन द साइन ऑफ यूनियन, उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। आफ्टर द साइन ऑफ यूनियन वी हैव सेट बी, सो वी विल राइट हियर द सेट बी। द सेट बी इज रिटन हियर, वी विल राइट द सेम सेट हियर। द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। ये हमने सेट ए यूनियन बी जैसे हमारे पास यहाँ पे था बिल्कुल उसी पैटर्न पे हमने इसको यहाँ पे लिखा है। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, यूनियन में जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स हम लिखते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स हों उनको हम एक दफ़ा लिखते हैं और जो सेपरेट एलिमेंट्स हों उनको हम भी एक दफ़ा लिखते हैं। जैसे इसमें हम देखते हैं 1 सेट बी में है उसको लिखेंगे, उसके बाद 2 दोनों सेट्स में है तो 2 को एक दफ़ा लिखेंगे। सेट ए में 3 नहीं है लेकिन सेट बी में 3 मौजूद है तो उसको भी हम ए यूनियन बी आंसर में लिखेंगे। उसके बाद 4 दोनों में है उसको लिखेंगे, 5, 6 and 7। इस तरह से हमारे पास जो ए यूनियन बी का सेट आता है वो उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। अगर आप देखें तो ये तकरीबन बल्कि एग्जैक्टली वही सेट बी है, उसको वही एज इट इज़ ए यूनियन बी में आया है। ए यूनियन बी हमने फाइंड किया। दोबारा से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास था ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का आपको पता है कि जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। सो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये दोनों सेट्स यहाँ पे लिखेंगे। सेट यू हमारे पास ऊपर गिवन है, उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 up to 10। उसके बाद ए यूनियन बी है तो ए यूनियन बी हमारे पास ये सेट हमने फाइंड आउट किया था, उसको उठा के यहाँ पे लिखेंगे। द एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी आर 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम जो वो एलिमेंट सेट ए यूनियन बी के वो एलिमेंट्स जो सेट यू में मौजूद हैं उनको नहीं लिखेंगे। जो सेट यू के यूनिवर्सल सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे उनको हम नीचे अपने आंसर में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखें यूनिवर्सल सेट में 1 मौजूद है, ए यूनियन बी में भी 1 मौजूद है। 1 से कैंसिल हो जाएगा, वो हमारे पास आंसर में नहीं आएगा। उसके बाद 2 यूनिवर्सल सेट में भी है, 2 ए यूनियन बी में भी है, वो भी कैंसिल होंगे, वो भी नहीं आएगा। इसी तरह से 3, 4, 5, 6 and 7 तक के एलिमेंट्स सारे के सारे हमारे पास ए यूनियन बी में मौजूद हैं। यूनिवर्सल सेट के उसके बाद वाले एलिमेंट्स जैसे 8, 9, 10 वो इस सेट में मौजूद नहीं हैं तो वो नीचे आपके आंसर में आएंगे। सो योर लेफ्ट हैंड साइड इज़ विद द एलिमेंट्स ऑफ 8, 9 and 10। दिस इज़ द लेफ्ट हैंड साइड। ये जब हमने हमारे फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ को सॉल्व किया तो उसकी लेफ़्ट हैंड साइड का जो सेट हमारे पास आया है उसके एलिमेंट्स हैं 8, 9 and 10। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अगर तो राइट हैंड साइड का में भी हमारे पास सेम सेट आता है विद द एलिमेंट्स ऑफ 8, 9 and 10 तो इसका मतलब है कि हमने डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई कर दिया है। आइए राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वी विल राइट हियर राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है और बी कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। उससे पहले अगर हम सेपरेट ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट्स को फाइंड कर लें तो हमारे लिए ईजी रहेगा। सो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। सेट ए का यूनिवर्सल सेट के साथ डिफरेंस लेंगे। अब इनकी जगह पे एज इट इज़ इनके सेट्स पुट करेंगे। यूनिवर्सल सेट जो हमारे पास गिवन था वो हम एज इट इज़ लिखेंगे विद द एलिमेंट्स ऑफ 1, 2, 3 up to 10 and then we will write here the elements of set A. The set A is 2, 4 and 6। इनका जब डिफरेंस लेंगे यूनिवर्सल सेट में हमारे पास 1 है लेकिन सेट ए में 1 नहीं है
तो इसलिए हमारा जो ए कॉम्प्लीमेंट है उसमें एलिमेंट 1 आएगा। उसके बाद यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट 2 है और सेट ए का एलिमेंट भी 2 है, तो 2 हमारे आंसर में नहीं आएगा। एंड देन 3 हमारे आंसर का पार्ट होगा, 3 ए कॉम्प्लीमेंट का पार्ट होगा। उसके बाद 4 सेट ए में भी है, वो कैंसिल होगा। 4 के बाद 5 सेट ए में नहीं है, सिर्फ सेट यू में है, तो वो एज इट इज़ आएगा। देन 7, 8, 9 एंड 10 दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया है। अब हम हमारा जो सेकंड पार्ट है बी कॉम्प्लीमेंट, उसकी तरफ चलते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे। इनकी जगह पे हम इनके सेट लिखेंगे। सेट यू, हमने यू की जगह पे सेट यू लिखा, द साइन ऑफ डिफरेंस, एंड देन बी की जगह पे सेट बी लिखा। जब हम इनका डिफरेंस लेंगे, सेम वही मेथड, बी के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएंगे। 1 के साथ कैंसिल, 2 के साथ। सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 से लेकर 7 तक हैं, वो सारे के सारे कैंसिल होंगे। उसके बाद वाले एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के 8, 9 एंड 10 वो हमारे सेट बी कॉम्प्लीमेंट का पार्ट होंगे। सो दिस इज़ द सेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट विद द एलिमेंट्स ऑफ 8, 9 एंड 10। हमने ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड किया, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया। तो अब वापस राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास थी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जो हमने सेट्स फाइंड किए हैं वो यहाँ पे पुट करेंगे। द सेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट दैट वी हैव फाइंड आउट हियर, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे विद द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5, 7, 8, 9 एंड 10, एंड देन द साइन ऑफ इंटरसेक्शन, उसको एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट है, तो बी कॉम्प्लीमेंट का हमने ये सेट फाइंड किया था विद द एलिमेंट्स ऑफ 8, 9, 10, उसको लिखेंगे। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के जो सेट्स हैं इनका हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। एज यू नो कि इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हों, या सिंपल वर्ड्स में हम यूँ कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। तो इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट अगर आप देखें तो 8, 9 एंड 10 है। सो द सेट फॉर द राइट हैंड साइड इज़ दिस विद द एलिमेंट्स ऑफ 8, 9 एंड 10। लेफ्ट हैंड साइड में भी हमने यही सेट फाइंड किया था। तो इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद हमारे आंसर सेम आए हैं। तो हम कह सकते हैं दैट फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ हैज़ वेरीफाइड विच इज़ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो एग्जाम्पल का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने सॉल्व कर लिया है। सेकंड पार्ट आपकी असाइनमेंट होगी, लास्ट में मैं मेंशन भी करूँगा उसको। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2, एक्सरसाइज नंबर 1.2, इसका क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5? इसमें वो कहता है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज इफ़, यहाँ पे नीचे हमारे पास कुछ सेट्स गिवन है। सेट यू इज़ इक्वल टू एन। एन हमने पढ़ा हुआ है दैट इट इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसको मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की टेबुलर फॉर्म है। और उसके साथ हमारे पास जो सेट ए गिवन है वो सेट ए इज़ इक्वल टू 5। 5 आपको पता है एम्प्टी सेट को डिनोट करता है, सो मैंने उसको सेट नोटेशन में भी लिख दिया है। और सेट बी जो हमारे पास गिवन है बुक में, वो हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स को मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखा है। तो एज यू नो दैट द एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। तो मैंने इन तीनों सेट्स को यूनिवर्सल सेट, सेट ए एंड सेट बी, इनको मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है ताकि आपको अंडरस्टैंड करना इजी हो। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। वी हैव टू वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉज। डी मॉर्गन्स लॉ हमारे पास 2 हैं। एक मैंने एग्जांपल में सॉल्व किया है। यहाँ पे मैं सेकंड डी मॉर्गन लॉ सॉल्व करूँगा ताकि आपको सेकंड की भी समझ आए कि सेकंड डी मॉर्गन लॉ को किस तरह सॉल्व करते हैं। So the second De Morgan law is A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement। सेम वही मेथड अडॉप्ट करेंगे सॉल्व करने के लिए जो हमने एग्जांपल में किया था कि पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और फिर हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड जो यहाँ पे लिखी हुई है मैंने वही एज इट इज़ नीचे लिखी है, विच इज़ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें भी पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी अगर फाइंड करें तो सेट ए हमारे पास एम्प्टी सेट है, उसे लिखा।
इंटरसेक्शन सेट बी हमारे पास प्राइम नंबर्स का सेट था, उसको मैंने लिखा 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। चूँकि इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। सेट ए एम्प्टी सेट है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो हमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो जो इंटरसेक्शन में हमारे पास सेट आएगा वो एम्प्टी सेट ही होगा। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू द एम्प्टी सेट। अब हम वापस लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड हम इसको सॉल्व करते हैं। यूनिवर्सल सेट की जगह पे हमारे पास जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स था वो लिखा, एंड देन ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास जो सेट आया था वो एम्प्टी सेट था, उसको मैंने लिखा। अब कॉम्प्लीमेंट लेना है तो हर वो एलिमेंट जो इसमें मौजूद है वो यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस करेंगे, लेकिन चूँकि ये एम्प्टी सेट है तो यूनिवर्सल सेट का कोई एलिमेंट माइनस नहीं होगा, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में यूनिवर्सल सेट एज इट इज़ आएगा विद द एलिमेंट्स ऑफ 1, 2, 3 एंड सो ऑन, जिसको ऊपर क्वेश्चन में यू से रिप्रेजेंट किया था। अगर आप उसको वापस यू से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं भी करना चाहते तो भी आपकी चॉइस है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे रेड से मेंशन किया है। अदरवाइज़ ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है। लेफ़्ट हैंड साइड हमने सॉल्व की, अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। अगर राइट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद भी हमारे पास यही सेट मिलता है तो हम कहेंगे कि हमने डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई कर दिया है। राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह जैसे हमने एग्जांपल में किया था, पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, सेट यू लिखेंगे एंड देन सेट ए लिखेंगे। क्योंकि ए एम्प्टी सेट है तो ए कॉम्प्लीमेंट में सेट यू एज इट इज़ आएगा। नेक्स्ट बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, बी उसी तरह से सेट यू लिखेंगे, फिर हम सेट बी लिखेंगे। सेट बी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है, इसके प्राइम नंबर्स जो हैं जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे, प्राइम नंबर के अलावा जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे बी कॉम्प्लीमेंट में फॉल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं 1 सेट बी में नहीं है, वो नीचे आएगा। 2 सेट बी में है तो वो कैंसिल होगा। उसके बाद 3 बी सेट ए में है, सेट बी में है, वो भी कैंसिल होगा। नेक्स्ट 4 सेट बी में नहीं है तो उसको नीचे लिखेंगे। इस तरह से हम प्राइम नंबर्स को, जब प्राइम नंबर्स के अलावा बाकी जो नंबर्स होंगे वो उनका जो सेट बनेगा वो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का सेट आएगा। हमने ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड किया, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया। अब वापस राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास थी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इनकी जगह इनके सेट्स पुट करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये सेट है, यूनियन देन द सेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट हमने ये फाइंड आउट किया था, उसको यहाँ पे एज इट इज़ लिखेंगे। क्योंकि दरमियान में यूनियन है, हमें इनका यूनियन फाइंड करना है। यूनियन में हर वो एलिमेंट आएगा जो किसी एक सेट में भी मौजूद होगा, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट का जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट है विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो तकरीबन सारे एलिमेंट्स आएंगे। अगर आप देखें 1 आएगा, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर आएगा, जिसको क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट से कहा गया था। सो द राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू द सेट विद द एलिमेंट्स ऑफ 1, 2, 3 एंड सो ऑन, जिसको आप यूनिवर्सल सेट से भी रिप्रेजेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप इसको इग्नोर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यही आंसर हमारी लेफ्ट हैंड साइड का था। दोनों साइड्स इक्वल आई हैं, तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि हमने डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई कर दिया है। सो वी कैन राइट इट एज ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल में डी मॉर्गन्स लॉ के में 2 लॉस थे, एक मैंने एग्जाम्पल में सॉल्व किया, सेकंड मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन में सॉल्व किया। तो दोनों डी मॉर्गन्स लॉस के क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आप असाइनमेंट के तौर पे इनको खुद से भी करेंगे ताकि आपको क्लियर हो कि डी मॉर्गन्स लॉस को इस तरह से वेरीफाई करते हैं। सो असाइनमेंट की तरफ आएँ। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5, एक डी मॉर्गन लॉ मैंने प्रूव किया था। सेकंड जो है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसे आप खुद करेंगे अपनी प्रैक्टिस के तौर पे। और इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 5 उसका सेकंड पार्ट मैंने छोड़ा था जो कि पेज नंबर 8 के ऊपर है, इसको भी आप खुद से सॉल्व करेंगे। ये आपकी असाइनमेंट थी।
आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।